Okay, dear students, welcome to all of you in the microprocessor class of MITRC Alwar. Today we are going to discuss about the addressing mode of 8051 microcontroller. As we have already studied about the microprocessor and microcontroller, we have studied about the architecture of the 8051 microcontroller and 8085 microprocessor. If we see that 8051 microcontroller have the several addressing mode. First we will see that what is the meaning of the addressing mode. The addressing mode is a way to locate a target data, which is also called as operand. ऑपरेंड और जो टारगेट हमारा डाटा है उसकी लोकेशन कहां पर है उसको लोकेट करने के लिए वी आर यूजिंग द एड्रेसिंग मोड. So basically in the 8051 family of microcontroller permit the five type of addressing mode. So what are these five type of addressing mode? These are the immediate addressing mode, register addressing mode, direct addressing mode, register indirect addressing mode, and indexed addressing mode. So these are the different addressing mode of the 8051 microcontroller. Now what happen in case of the first, we are discussing about the immediate addressing mode. In the immediate addressing mode, the operand which follow the opcode is a constant data of either 8 or 16 bit. As shown here with example, here it is the operand which is the 8-bit data is given here. Now to locate its position, that data, its name is immediate because that is directly immediately loaded in the accumulator. So we can see here that 30H data is loaded in the accumulator directly. If there is a accumulator register, in this register we can directly load the 30H data in the binary format. So what will be the binary format for the 30H? Hex number 3, 4, 5, 6, 7, 8. So what is meaning of 3? 1, 1, 0, 0. That is the 3. And what is the 0? 0, 0 and 0. That is the 0. So that means it is the 30. 3 and 0. So the constant value to be stored is specified in the instruction itself. यहाँ पर हमें जो constant value store करनी है वो हमारी instructions में directly हमको specified की हुई है rather than taking from a register. इसको हमने अलग से किसी रजिस्टर से नहीं लिया हुआ. The destination register to which this constant data must be copied should be the same size. जो हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा, तो यहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन सा है? दैट इज द ए, जिसके अंदर हम डाटा को डालना चाहते हैं. तो दैट शुड बी मैच विद द size of the data, because if data is 8 bit then destination register should also be the 8 bit. If our data is 16 bit then destination register should be the 16 bit. So that should be match. Accumulator here is loaded with the 30 हेक्साडेसिमल नंबर. यहाँ पर जो हमारा अकोमुलेटर है वो लोड हो जाता है 30 हेक्साडेसिमल नंबर से. द स्टार इन द ऑपरेंड इंडिकेट दैट इट इज ए डाटा एंड नोट द एड्रेस ऑफ ए रजिस्टर. यहाँ पर ये जो हैश लगा हुआ है ये इंडिकेट करता है कि जो हम लोडेड यहाँ पर कर रहे हैं दैट इज ए डाटा, ये हमारा एड्रेस नहीं है. बिकॉज इफ इट इज द एड्रेस, तो एड्रेस जो हमारा होगा वो 2050 इस तरह से एड्रेस होगा, और डाटा जो मेमोरी के अंदर डाटा है. तो वी कैन सीन ऑलरेडी कि अगर हमारा जो मेमोरी है, आप लोगों से हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो हमारी मेमोरी है
उसमें दो चीज हो सकती हैं. वन इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी, like the 2050, 2051, that is indicating the address of the memory, and data that is inserted in that memory 30, 32, that is indicating the data. तो इस तरह से यहाँ पर जो हैश है वो ये इंडिकेट करता है कि हमने डाटा को एंटर किया है, ना कि हमने ये एड्रेस को, मेमोरी एड्रेस को यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है. नाउ कम टू द सेकंड जो हमारा ये डायरेक्ट, दैट इज कॉल्ड द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, बिकॉज यहाँ पर हमारा डाटा है वो इमीडिएट हमारा लोडेड है. सेकंड वी विल सी हियर द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. रजिस्टर जो हमारा एड्रेसिंग मोड होगा वो हमारा जो दूसरा मोड है. तो यहाँ पर फर्स्ट वी रिमेंबर दैट हाउ मेनी रजिस्टर्स आर इन द 8051 microcontroller. So we have earlier studied that 8051 microcontroller has the 4 बैंक. उसमें हमारे पास 4 बैंक होते हैं, बैंक 0, 1, 2, 3, और उन बैंक्स के अंदर हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं. तो जो हमारे पास जिस तरह से लाइक दैट इज द बैंक 1, 2, 3, 4, तो these are the like that is the बैंक 0, ये हमारा बैंक 0 को इंडिकेट कर रहा है. दैट इज द बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, इस तरह से हमारे बैंक हैं. और इन बैंक्स के अंदर हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं. इन बैंक के अंदर हमारे पास ये रजिस्टर्स हैं. तो कितने रजिस्टर होते हैं एक बैंक में? अगर हम मेमोराइज करें, we have taken the R0 to R7. In each bank we consider the R0 to R7 register. इसी तरह से हमारा जो बैंक 0 होगा उसमें भी हमारे पास R0 से R7 रजिस्टर्स हैं, वो होंगे बैंक 2 में भी और 3 में भी. एंड व्हाट इज द PSW रजिस्टर की बैंक का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? वी हैव द PSW रजिस्टर. हमारे पास एक रजिस्टर होता है दैट इज कॉल्ड द PSW रजिस्टर. तो ये जो हमारा PSW रजिस्टर है, ये रजिस्टर हमारा क्या करता है? PSW ये इससे हमें डिफाइन होता है कि हमारा कौन सा बैंक हमने काम में लिया हुआ है, कि बैंक 0 है, 1 है, 2, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडी. If you will revise, so we can see in the register addressing mode 8051 microcontroller, we have seen the organization of the RAM and 4 bank of working register with 8 register in each bank. In register addressing mode, one of the 8 register R0 to R7 is specified as operand in the instruction. तो जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसमें जो रजिस्टर होगा दैट इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड, लाइक द MOV AR5. तो इट मींस इट शोज दैट MOV AR5. तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उसमें रजिस्टर का नंबर डायरेक्टली दिया हुआ है. इट कैन बी MOV A लाइक R2. ये हमारे इस तरह से भी हो सकते हैं कि हमारा ये R2 रजिस्टर डिफाइन कर दिया. तो जिस रजिस्टर में भी हमको डाटा को लेना है दैट रजिस्टर इज स्पेसिफाइड हियर एंड एप्रोप्रिएट बैंक इज स्पेसिफाइड विद PSW रजिस्टर. तो 8-bit कंटेंट ऑफ द रजिस्टर R5 ऑफ बैंक 0 इज मूव टू द अकोमुलेटर. तो बाय दिस इंस्ट्रक्शन व्हाट विल हैपन? इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू MOV AR5 के थ्रू क्या होगा? जो हमारा R5 रजिस्टर है, सपोज वी आर टेकिंग द बैंक 0, और R5 रजिस्टर के अंदर जो हमारा डाटा कंटेंट है वो सपोज हमारे पास 21H डाटा स्टोर है. किसमें? दैट इज स्टोर इन द गिवन रजिस्टर R5. तो दैट वी कैन टेक इट लाइक ये हमारे पास रजिस्टर का जो है इस तरह से अरेंजमेंट है. दैट इज अवर वी आर टेकिंग दैट इज द बैंक 0 हमने ले लिया. उसके बाद हमारे पास बैंक 1,
2 3, तो वी कैन से B1 बैंक 1 बैंक 2 बैंक 3, इनको हम यहाँ पर स्पेसिफाइड कर देते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास रजिस्टर है तो दैट इज R0 R1 R2 और R3, तो दैट इज द R3 रजिस्टर। तो ये जो डाटा है R5 लिया है हमने यहाँ पर, तो सपोज इसको हम और डिवाइड कर देते हैं, दैट इज द 1 2 3 4 5, दैट इज द नाउ R5 रजिस्टर। R0 to R5 हमने लिया है, तो R0 R1 R2 R3 R4 R5 रजिस्टर हमारा ये वाला रजिस्टर होगा। तो इस रजिस्टर के अंदर जो हमारा ये R5 रजिस्टर है, इसमें हमने ये मान लिया कि R5 रजिस्टर के अंदर हमारे पास 21H, यहाँ पर हमारे पास 21H डाटा स्टोर है, तो ये डाटा अकोमुलेटर में कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम रजिस्टर के थ्रू करते हैं, उसको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कह दिया, डाटा रजिस्टर के अंदर दिया हुआ है, वहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है तो हमने डायरेक्टली उसको वी हैव सेड दैट इट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसी तरह से हम बाकी के 3 रजिस्टर्स, डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग,